اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to this session of yours. This session comprises of our textual reading of the lesson, the end of term, the second portion. عزیز طلبہ، اس آج کے سیشن میں خوش آمدید. آج ہمارا سیشن جو ہے بیٹے اینڈ آف ٹرم ہمارا جو لیسن ہے اس کا دوسرا حصہ گزشتہ حصے سے منسلک آج اس کی ٹیکسچوئل ریڈنگ کا دوسرا پورشن جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. Dear students, as the introduction is the same as that of the first part of this lesson, therefore you may relate to the first lecture, the previous lecture about this lesson. عزیز طلبہ، یہ انٹروڈکشن کا حصہ، تعارفی حصہ جو ہے وہ گزشتہ ہمارے سیشن میں تفصیل سے ڈسکس ہوا ہے. آپ اس کو وہاں سے دوبارہ سے ایک بار ریوائز کر سکتے ہیں تاکہ مجموعی تاثر جو ہے وہ سبق کا آپ کے ذہن میں بن سکے کہ یہ لیسن جو ہے وہ ہے کیا، کس چیز کے بارے میں ہے، کون سا موضوع ہے. تو اس کو پچھلے سیشن کے حصے سے پلیز دوبارہ ایک بار ریوائز کریں. Dear students, from here our text restarts. It is interconnected with the previous session. These were blessed breaks in routine. روزمرہ کی روٹین میں یہ گویا جو تھے وقفے جو تھے، یہ وقفے سے آنے والی جو چھٹیاں تھیں، تعطیلات تھیں، بریکس تھیں، یہ گویا ہولی قسم کی بلیسڈ رحمت نما وقفے تھے. بٹ ناٹ آف کورس کمپیریبل ٹو دا ہالیڈیز وی گاٹ ایٹ کرسمس اینڈ ایٹ ایسٹر. اب یہ ذرا تھوڑی سی طویل چھٹیوں کی بات کریں گے مصنف، لیکن یقیناً یہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، ناٹ کمپیریبل ان چھٹیوں سے جو ہمیں ملا کرتی تھی کرسمس کی چھٹیاں اور ایسٹر کی چھٹیاں. یہ آپ کو پتہ ہے ان کے مذہبی تہوار ہیں ہماری کرسچین کمیونٹی کے، اور ان تہواروں پر بڑی چھٹیاں ملتی تھی اور اس کی آگے ڈیٹیل ہے. 3 weeks ایچ، یہ 3 ہفتے کی ہوتی تھیں ہر ایک تقریب پر. مثلاً کرسمس پر بھی 3 ہفتے کی چھٹیاں اور ایسٹر پر بھی 3 ہفتے کی چھٹیاں. ان مائی ارلیئر اسکول ڈیز، جب میرے اسکول کے بالکل ابتدائی ایام ہوتے تھے، دنوں تھے جب میں چھوٹا تھا. لیٹر ٹریجیکلی ریڈیوس ٹو اے فورٹ نائٹ، اور بڑے دکھی لہجے میں مصنف کہتے ہیں کہ بعد میں المناک طور پر انہیں گھٹا کر جو ہے صرف 14 دن کر دیا گیا. فورٹ نائٹ 15 واڑے کو بیٹے کہتے ہیں، 15 دنوں کو، تو 14 دن 15 دن کر دیا گیا، گھٹا کر ان کو کم کر دیا گیا. اینڈ دین، اور تب، if my recollection of loss is not misleading me, then again he says in a humorous manner کہ اگر میری یادداشت جو ہے اس نقصان کی، یہ ایک طالب علم کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، ریکولیکشن، یاد، ریکالنگ، اگر مجھے جو ہے وہ گمراہ نہیں کر رہی ہے میری اس نقصان کی یاد، تو میں کہوں گا ٹو اے میئر 10 days، تو محض گھٹا کر ان ظالموں نے ان چھٹیوں کو محض 10 دن کی چھٹیاں کر دیا ہے. شروع میں یہ 3 ہفتے کی ہوتی تھیں، مطلب 21 چھٹیاں ہر تہوار پر، اور پھر انہوں نے اسے جو ہے گھٹا کر جو ہے وہ 14 دن کر دیا، اور پھر ظالموں نے اور ظلم کیا کہ یہ چھٹیاں جو تھی وہ 14-15 سے کم کر کے ان کو محض 10 دن تک محدود کر دیا. بٹ دا ہالیڈیز ور دا سمر ہالیڈیز، لیکن کیا بات ہے جی، اصل چھٹیاں جو تھیں وہ گرمیوں کی تعطیلات ہوتی تھیں. دا 2 months ویکیشن، 2 ماہ کی وہ چھٹیاں، وی گاٹ ان دا سمر ٹائم، جو ہمیں موسم گرما میں ملا کرتی تھیں. اینڈ اٹ واز دیز منتھس ٹوورڈز وچ دا ہول ایئر مووڈ. یہ بیٹے جو سینٹینس ہے یہ اس کی ساری سینسیشنز کا خلاصہ ہے کہ وہ چھٹیوں کی طرف کیسے محسوس کرتا تھا بحیثیت ایک طالب علم کے. اٹ واز دیز منتھس، تو یہ 2 ماہ ہوا کرتے تھے، ٹوورڈز وچ دا ہول ایئر مووڈ، تو جس کے گرد مجھے لگتا تھا کہ سارا سال جو ہے ہمارا پورا سیمسٹر جو ہے وہ گھومتا نظر آتا تھا مجھے، کہ یہ سال میں جو ہے نا 2 مہینے آئیں گے تو ہم منتظر رہتے تھے، یعنی فار دیز summer holidays to arrive quickly.
तो हम सब बैसियत तालिब इल्म जो थे अपने ज़माने में ये 2 माह की छुट्टियां जो हैं उनके मुंतज़र रहा करते थे। ये किसी हद तक आपको भी पता ना, अगर से आप बड़े हो गए हैं तो ये 2 माह की जो गर्मियों की छुट्टियां हैं इनको हम कितनी बड़ी नेमत समझते हैं और सारा साल इंतज़ार करते हैं कि वैन दे आर कमिंग, वैन दे आर कमिंग। हमारे यहाँ तो ये 2.5-3 माह की भी होती हैं मौसम के एतबार से। सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स फ्राम दिस पोर्शन डियर स्टूडेंट्स। कंपेरेबल, मुकाबलातन, उनके मुकाबले में, सिमिलर के मानी में। रिड्यूस्ड, एब्रिज्ड, घटा दी गई, कम कर दी गई। रिकलेक्शन, मेमोरी, याद। मिसलीडिंग, डिसेप्टिव, धोखा देने वाली, गुमराह करने वाली। 2 months seemed a long time in those days। उन दिनों में यानी इब्तदाई तालीमी अयाम में जब मैं स्कूल बॉय था तो ये 2 माह जो थे एक तवील, बहुत तवील अरसा नज़र आता था। Indeed, I used to have the feeling that for all practical purposes I could look forward to a period of permanent felicity। फेलिसिटी बेटे खुशी को कहते हैं, हैप्पीनेस को कहते हैं, एन्जॉयमेंट को कहते हैं, प्लेयर को कहते हैं। परमानेंट, मुस्तकिल, लगातार होने वाली, मुसलसल होने वाली, कॉन्टीन्यूस, एवर, फॉर एवर होने वाली चीज़। इंडीड, दरअसल आई यूज़ टू हैव द फीलिंग, मेरे अंदर ये एहसास जो था मुस्तकिल ये कायम रहता था, दैट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, तमाम जो मकासद हैं अमली किस्म के, आई कुड लुक फॉरवर्ड टू ए पीरियड ऑफ परमानेंट फेलिसिटी, तो मैं देख सकता था, मुंतज़र रहता था। लुक फॉरवर्ड टू बेटे अंडरलाइन करें, ये ईडियम है, मुंतज़र होना, मुंतज़र रहना। एक ऐसा दौरानिया, एक ऐसा अरसा जो कि मुस्तकिल खुशी का बायस होता था, मैं उसका मुंतज़र हुआ करता था। आई वुड वॉक होम अक्रॉस द मीडोज़ इन द जुले सनशाइन, मैं घर की तरफ जुलाई की रोशन सूरज में, मैं घर की तरफ खेतों में से गुज़रता हुआ चलता हुआ आता था। वेयरिंग माई समर स्कूल क्लोथ्स, अपने गर्मियों के लिबास पहने हुए, स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए। ऑफ ग्रे क्रिकेट शर्ट, ये ग्रे रंग की क्रिकेट की शर्ट, ग्रे शॉर्ट्स, पतलून भी ग्रे, एंड रेड वेटसन्स ब्लेज़र, और ऊपर मैंने वो ब्लेज़र पहना होता था सुर्ख रंग का, वेटसन कंपनी का। एंड सेवर माई हैप्पीनेस विद कॉन्शियस रैलिश, और मज़े करता था, सेवर, इंजॉय करता था अपनी इस खुशी से, एक पुरशऊर मज़े के साथ, यानी मज़ा लेता था अपनी इस खुशी से कि 2 माह की छुट्टियां हो गई हैं। आई कुड हार्डली बिलीव, मुझे यकीन ही नहीं आता था, दैट 3 strenuous स्कूल टर्म्स हैड इंडीड रोल्ड अवे, कि 3 इंतहाई सख्त, मेहनत तलब, दिक्कत आमेज़ स्कूल के जो सेशन हैं, स्कूल टर्म्स हैं, सेशंस जो हैं, वो आखिरकार इख्तिताम पजीर हो गए हैं, रोल्ड अवे, चले गए हैं, रुखसत हो गए हैं। एंड द लॉन्ग्ड फॉर, ड्रीम्ड ऑफ, ऑलमोस्ट, इट सीम्स एट टाइम्स, मिथिकल समर हॉलीडेज़ वर एट हैंड, और वो जिनकी मैं ख्वाहिश करता था, लॉन्ग्ड फॉर, शदीद ख्वाहिश करता था और उनके ख्वाब देखता था, तकरीबन ये उस ज़माने में मुझे लगता था कि बड़ी दियोमालाई किस्म की जादू भरी गर्मियों की छुट्टियां जो थीं वह अब आखिरकार आन पहुंची थीं, वर एट हैंड, अनस्पाइल्ड एज येट, और अभी ख़राब नहीं हुई थीं, मुकम्मल तौर पर महफूज पड़ी थीं। लाइंग इंटैक्ट, बिल्कुल महफूज पड़ी थीं, ख़राब नहीं हुई थीं। एंड प्रॉमिजिंग जस्ट अहेड, और आगे खुशगवार अंदाज में दिखाई दे रही थीं। इट ऑल सीम्ड टू गुड टू बी ट्रू, ये सब इतना अच्छा होता था कि इस पर यकीन करने को जी नहीं चाहता था कि हैं ये खुशी भी हमें नसीब हो गई है 2 माह की छुट्टियों की। तो ये एहसास है, इट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग रादर। बेटे कुछ अहम अल्फाज इस हिस्से में से, फेलिसिटी, हैप्पीनेस, मीडोज, फील्ड्स, स्ट्रेनुअस, वेरी हार्ड, लेबोरियस, एक्टिव, रोल्ड अवे, पास्ड अवे, रुक गुजर जाना, मिथिकल, लेजेंडरी, देवमालाई जिसे आप बोलते हैं, अनस्पाइल्ड, प्योर, ख़राब हुए बगैर, बिल्कुल इंटैक्ट, इंटैक्ट के मानी में इंटैक्ट, कंप्लीट, विदाउट यूजिंग, किसी चीज़ के इस्तेमाल को बगैर अगर उसे रखा जाए, छेड़छाड़ किए बगैर, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटैक्ट। नो द नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ ए बिट ग्लूमी,
बट अ वेरी वेरी ब्यूटीफुली रिटन पैराग्राफ। बेटे ये जो अगला हमारा हिस्सा है लेसन का, जिससे अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ मुसन्निफ़ जो है अपनी ज़ाती ज़िंदगी की बड़ी खूबसूरत चीज़ें जो है वो हमारे सामने ला रहा है कि एक अच्छा तालिब इल्म जो है वो देखे कैसे जो है वो बचत कर करके किन माली हालात में से गुज़र कर जो है वो एक बड़ा आदमी बनता है। विशेज़ डिड नॉट कम ट्रू इन दिस लाइफ, मेरी ज़िंदगी में ख्वाहिशात कभी पाया तकमील को नहीं पहुँची। आई न्यू दैट, मुझे पता था अपने हालात का, माली हालात का। ऑल माई अर्ली चाइल्डहुड, अपने इंतहाई बचपन के दिनों में, आई लॉन्ग्ड डेस्परेटली फॉर ए ट्राइसिकल, मेरा बेहद जी चाहता था, लॉन्ग्ड मेरी बेहद ख्वाहिश थी, डेस्परेटली मायूसी की हद तक ख्वाहिश थी कि मुझे जो है वो एक 3 पहियों वाली साइकिल वालदैन ले दें, कि मैं एक 3 पहियों वाली साइकिल जो है वो घुमाता फिरूं। विच माई पेरेंट्स कुड नेवर अफोर्ड, मेरे वालदैन जिसको अफोर्ड नहीं करते थे। एंड लेटर द विश वॉज ट्रांसफर्ड टू ए बाईसिकल, और जब मैं बड़ा हुआ, थोड़ा लड़कपन की तरफ गया, तो फिर ये ख्वाहिश 3 पहियों वाली साइकिल से गुजर कर ट्रांसफ़र होकर ये 2 पहियों वाली साइकिल, बाईसिकल में तब्दील हो गई। एंड देयर टू आई वॉज परमानेंटली डिसअपॉइंटेड, और ये ख्वाहिश भी जो थी यहाँ भी मुस्तकिल तौर पर मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा। आई बॉट माई फर्स्ट बाईसिकल फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने लिए अपनी पहली साइकिल जो थी वो खरीदी वैन आई वाज 21, जब मेरी उम्र 21 बरस की हो गई। विद प्राइज़ मनी, उस इनामी रकम के साथ। आई हैड वन एट एडम्बरा यूनिवर्सिटी, जो मैंने बहसीत तालिब इल्म किसी इनाम के तौर पर एडम्बरा यूनिवर्सिटी में रकम जीती, प्राइज़ मनी जीती, इनामी रकम जीती। उस रकम से मैंने अपनी पहली बाईसिकल खरीदी। हाउ ऑफ्टन हैड आई स्टूड आउटसाइड स्वीट शॉप्स विद एम्प्टी पॉकेट्स, कई मरतबा, हाउ ऑफ्टन, अक्सर औकात मैं मिठाई की दुकानों के सामने बाहर खड़ा होता था अपनी खाली जेबों के साथ। लॉन्गिंग फॉर ए पेनी, शदीद ख्वाहिश रखते हुए कि काश मेरी जेब में एक आध सिक्का होता। और टू मटेरियलाइज सम हाउ, और किसी तरह के मैं अपनी इस ख्वाहिश को अमली जामा पहना सकता। मटेरियलाइज, माली हैसियत के हिसाब से उसको मादी शक्ल दे सकता। और हंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ए क्राउड, या कहीं बच्चों का एक ठेले वाले के गिर्द मजमा लगा होता था। आउटस्कर्ट्स, बैरूनी हिस्सा, ए क्राउड। अराउंड एन आइसक्रीम बारो, किसी आइसक्रीम वाले की रेडी के गिर्द, खांचे के गिर्द जो है लोगों का एक हजूम जमा होता था, तो उसके बाहर मैं भी मुंह लटका के खड़ा होता था। हंग ऑन वंडरिंग वेदर द आइसक्रीम मैन वुड बी मिरेकुलसली इंस्पायर्ड टू ऑफर मी ए कॉर्नेट और ए स्लाइडर फ्री, हैरान होते हुए कि शायद ये आइसक्रीम बेचने वाला जो आदमी है मुझे बड़ी मौजज़ाना तौर पर ऑफ़र करेगा कि लो बेटे तुम भी एक फ्री में एक आइसक्रीम का एक कॉर्नेट या एक स्लाइडर ही कम अज़ कम एक चम्मच जो है वो तुम भी फ्री ले लो। तो यानी तरस कहा कि शायद मुझे मुफ्त में आइसक्रीम दे देगा, लेकिन ये ऐसी बातें कभी रूनमा नहीं होती थीं। मिरेकुलसली बेटे, मौजज़ाना तौर पर। Some important words from this portion, gentlemen. Desperately, very badly, severely जिसे आप कहते हैं। Materialize, वैसे लफ्ज़ी मतलब इसका अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना, मादी तौर पर, माली तौर पर। अपीयर के मानी में भी आता है ये। मिरेकुलसली, बड़े मौजज़ाना तौर पर। अमेजिंगली, वंडरफुली। कॉर्नेट, आइसक्रीम का वो जो है बार था, उसका आपको पता है कॉर्नेट क्या होती है। आज के बच्चों को तो हमसे ज़्यादा पता है। नाउ द राइटर कंक्लूड्स हिज एसे गिविंग द डिटेल्स ऑफ हिज ट्रैवल टू सम हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज ही हैज़ गॉट एज अ स्कूल बॉय। बेटे ये अब इस सब लेसन का कंक्लूजन। दीज थिंग्स नेवर हैपेंड, तो इस तरह के मौजज़ात जो थे वो कभी नहीं होते थे। ना ही कहीं से मिठाई मुफ्त में मिलती थी, स्वीट्स मिलती थी, ना ही किसी वेंडोर ने कभी आइसक्रीम जो है वो ख्वांचा फरोश ने कभी आइसक्रीम का एक आध जो है वो कॉर्नेट
मुफ्त में दिया। द फ्यू पेंस ए वीक पॉकेट मनी वी रिसीव्ड वाज टू बी पुट इनटू ए मनी बॉक्स। देखें, ये पुराने वक्तों में बच्चे इसी तरह से अपनी पॉकेट मनी जो थी वो मनी बॉक्स में, उसे गल्ला कहा करते थे, लकड़ी का या मट्टी का बना होता था, तो उसमें ये पैसे बचा के रखने का रवाज होता था जो अच्छे तालिब इल्म होते थे। आज तो आपको पता है कि आप जो है वो वालिदैन से जितने पैसे लेकर जाते हैं बच्चे, उसके समोसे पकौड़े खा के शाम को फारग कर देते हैं उन पैसों को। तो ये देखें कितनी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है। द फ्यू पेंस ए वीक, वो चंद सिक्के जो एक हफ्ते में हमें मिला करते थे पॉकेट मनी, जेब खर्च के तौर पर, वी रिसीव्ड जो हमें मिलते थे बहन भाइयों को, वाज टू बी पुट इनटू ए मनी बॉक्स, तो हम उन्हें एक पैसे बचाने वाला एक बॉक्स होता था, मनी बॉक्स होता था, उसमें रख देते थे। एंड सेव्ड, और बचत करते थे। एंड ड्यूरिंग अवर अर्ली चाइल्डहुड लायनल, सिल्विया एंड आई नेवर हैड एनीथिंग टू स्पेंड फॉर आवर सेल्व्स। तो हमने तो बचपन में 3 बहन भाइयों ने कभी कोई अपने लिए जो है अपनी ज़ात पर खर्चा नहीं किया। येट समर एंड द समर हॉलीडेज़ डिड कम, लेकिन भाई एक ख्वाहिश ज़िंदगी में ज़रूर पूरी हुई बचपन में, और वो थी गर्मियाँ और गर्मियों की छुट्टियाँ जो ज़रूर आती थीं। द स्कूल ईयर डिड कम टू एन एंड, आखिरकार स्कूल के साल का इख्तिताम होता था। एंड वन डिड फाइंड वन सेल्फ एट लास्ट स्टैंडिंग बाई द ट्रंक्स, और आखिरकार मैं अपने आप को पता था अपने घर के सूट केसों के साथ खड़ा हुआ, ट्रंक्स के साथ खड़ा हुआ, आउटसाइड नंबर 6 मिलर फील्ड प्लेस, ये इनके घर का एड्रेस है। वेटिंग फॉर द टैक्सी, और वहाँ खड़े होते थे हम पूरी फैमिली के साथ टैक्सी के इंतज़ार में। ग्लोरियस व्हीकल, तो उस ज़माने में ये मेरी बड़ी शानदार गाड़ी लगती थी, टैक्सी में बैठ के। दैट वाज टू कैनवे द फैमिली एंड इट्स लगेज टू द रेलवे स्टेशन, ताकि ये सारे ख़ानदान का साजो सामान और ख़ानदान को जो है ये टैक्सी जो है, शानदार व्हीकल जो है, उसको लेकर उनको रेलवे स्टेशन तक चली जाए। वहाँ से इन्होंने किसी हिल स्टेशन की तरफ ये छुट्टियाँ गुजारने जो है एज ए फैमिली जो है वो जाना है। तो दिस इज़ द कंक्लूजन हियर। बेटे इस हिस्से के चंद अहम सवालात, अहम अल्फाज। ग्लोरियस, मैग्निफिसेंट, शानदार के मानी में। वंडरफुल, लगेज साजो सामान जिसे आप बैगेज कहते हैं। Dear students, this is the conclusion of our today's session. We have concluded the textual reading of this lesson and of terms. बेटे हमारे आज के सेशन का इख्तिताम हुआ और ये सबक हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ, इस लेसन की एक्सरसाइज के साथ अगले सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टिल देन, it is goodbye and Allah Hafiz.